States of matter, lecture number 7. In today's lecture, students, we'll study about the Gay-Lussac's law, okay? And then आगे हम देखेंगे Avogadro's law. Again, all these laws govern the states of a gas. ठीक है? चलो देखते हैं in this particular topic what do we have to study? The pressure-temperature relationship. Now, if we are studying the pressure-temperature relationship, what all parameters will be constant? What all measurable properties will be constant? It is the number of moles and volume. Constant रहेंगे. Getting my point? Easy enough. चलो, Gay-Lussac's law देखते हैं. क्या है? Pressure in well-inflated tires of automobiles is almost constant. Inflated tires मतलब What does an inflated tire mean? मतलब जिसमें हवा नहीं है. Yes, pressure in well-inflated tires of automobiles is almost constant, but on a hot summer day this increases. क्यों बढ़ रहा है? Hot summer day से क्या relation है? Temperature का relation है. Yes, temperature अगर बढ़ रहा है तो अंदर pressure बढ़ रहा है. Are you getting? This is what the first statement is saying, right? So during winters, अब winters में क्या होता है? On a cold morning, मतलब temperature कम, one may find that pressure in the tires of a vehicle decreases considerably. Whereas winters में क्या observe करते हैं कि tires में जो pressure है वो कम है. तो दो पैरामीटर्स हो गए, एक समर सीजन एक विंटर सीजन. समर सीजन में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है एंड विंटर सीजन में प्रेशर कम होता है. टायर्स में बात हो रही है. ओके, सो Gay-Lussac law states that at constant volume pressure of a fixed amount, that is number of moles constant, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. तो pressure temperature relationship क्या हो गया? Pressure is directly proportional to the temperature. Yes, mathematically P is directly proportional to T, and if we bring it over here, what do we get? P by T is equal to constant. ठीक है? Now, pressure versus temperature graph at constant molar volume. Volume constant है, number of moles constant है. तो दोनों चीजें constant हो गई तो collectively क्या बोल दिया? Constant molar volume is shown and each line of this graph is isochore. Isochore क्यों students? जैसे Boyle's law में temperature constant था तो हम क्या बोलते थे? Isotherm है ना? और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या बोलते थे? आइसोबार है. सिमिलरली अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो व्हाट डू वी से? आइसोकोर. व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज? आइसोकोर. गेटिंग? सो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप में जो ग्राफ मिलेगा हमें, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन अगेन. व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है. यस, एंड व्हाट विल दिस ग्राफ बी कॉल्ड? इट विल बी कॉल्ड एज एन isochore. क्लियर? ठीक है, इतनी सी बात है. चलो, लेट अस मूव ऑन टू Avogadro's law. Avogadro's law में क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी द वॉल्यूम एंड अमाउंट रिलेशनशिप. मतलब कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स रिलेशनशिप. इसमें क्या करेंगे बताओ मुझे? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, चलो. तो what does it state? Let us check out. It states that equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure. मतलब कि temperature और pressure constant है. This is what I told you कि temperature और pressure constant है students. Yes, because of that equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Number of molecules refers to this N. ठीक है? Amount actually. Moles बोलो, molecules बोलो, preferably आप amount बोले यहाँ पर. Amount of the gas. Okay? Now, this means that as long as the temperature and pressure remain constant, जब तक temperature और pressure constant रहेगा, volume depends upon the number of moles. कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम ज़्यादा होगी. भाई सही बात है. अगर किसी चीज़ के 5 मोल्स हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा.
10 मोल्स ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। व्हाट इज मोल्स? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक तरह का क्वांटिटेटिव फैक्टर है, क्वांटिटी बताता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है अमाउंट में, क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या नहीं, बताओ मुझे। तो यही बोला जा रहा है कि एज फार एज टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ मोल्स पे। वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जब तक ये कांस्टेंट है सिर्फ तब तक, क्योंकि स्टूडेंट्स मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। क्या बोला है? टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है? टोटली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये रहा सिलेंडर, इसमें इतने n मोल्स थे एंड ये वॉल्यूम थी। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी देने पर क्या होता है? थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स अपार्ट, तो ये और दूर भागेंगे एंड एक लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब जो है वॉल्यूम किस पर डिपेंड करने लगी? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करने लगी। यस, सेकेंड चीज़ आप ले लें कि अगर आई एम टेकिंग अ सिलेंडर, इसमें n मोल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है, एंड अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर मैं बढ़ा रही हूँ, प्रेशर बढ़ा दिया, इनिशियली प्रेशर ये था, अब प्रेशर ये बढ़ा दिया मैंने, ज़्यादा प्रेशर कर दिया, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो गई ना। मोर नंबर ऑफ मोल्स विल बी प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है कांस्टेंट ही रहेंगे, व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई हो गई। तो अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर पे। तो वॉल्यूम जब प्रेशर पे डिपेंड करती है तो व्हाट इज दैट? बॉयल्स लॉ है ना। एंड जब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है दैट इज चार्ल्स लॉ। जब वॉल्यूम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है दैट इज व्हाट इज दैट? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, क्लियर इनफ? क्लियर है इतना? तो एक कंपैरेटिव स्टडी देख ली हमने। लेट अस मूव ऑन नाउ। The number of molecules in 1 mole of a gas has been determined to be 6.022 into 10 to the power, or we can also write it as 6.023 into 10 to the power 23 and is known as Avogadro's number. चलो इसको सही से देख लेते हैं। अच्छा, what is Avogadro's number? Represented by Na, ठीक है। What is it? 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है। What does it say? कि 1 mole of the gas में कितने molecules होंगे? 1 mole of the gas will have Avogadro number of molecules. That is, we can say that 1 mole of gas will have 6.023 into 10 to the power 23 molecules of gas, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना क्लियर है? चलो यहाँ देखो, इफ आई एम सेइंग 2 और वेट 1 mole of gas has Na molecules, ठीक है। तो 2 moles of the gas will have how many? 2 moles of gas will have how many molecules? It is equal to 2 into Na, ठीक है। Getting? 2 moles of gas will have 2 into Na molecules, 2 into Avogadro number, 3 moles of gas will have 3 into Na molecules and so on. Clear है इतना? Okay, चलो। So this was about the Avogadro's law. Now let us move. Since volume of a gas is directly proportional to number of moles as per the Avogadro's law, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume. 1 mole of each gas at standard temperature and pressure. Highly important statement. Standard temperature and pressure condition क्या होती है?
S stands for standard, T for temperature, P for pressure. Standard temperature and pressure conditions क्या होती हैं? Temperature is equal to 273.15 Kelvin and pressure is equal to 1 bar. These are the standard conditions of temperature and pressure. अब देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि since volume of a gas is directly proportional to number of moles, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume होगी. Okay, STP means 273.15 Kelvin, that is 0 degree Celsius, and 1 bar, that is equal to 10 to the power 5 Pascal pressure. These values approximate freezing temperature of water and atmospheric pressure at sea level. चलो ये तो ठीक है. STP molar volume of an ideal gas or combination of ideal gases is 22.7 liters. So it is said that जैसे 1 mole of gas has 6.023 into 10 to the power 23 molecules. Yes, तो इसमें वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगी? ये 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगी? इट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 लीटर्स. हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है? चलो लेट अस मूव ऑन. Number of moles of gas can be calculated as given mass upon molecular mass. ऐसे ही calculate करते हैं number of moles. तो number of moles किसी के भी ऐसे ही calculate करते हैं. Okay. Mass of the gas under investigation is small m, that is the given mass, and m is the molecular mass. Okay. चलो. A gas that follows Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law strictly is called an ideal gas. What is it called? What does an ideal gas do? It follows all these 3 laws strictly. Whereas real condition में ऐसी ideal gas possible नहीं है. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. Now such a gas is hypothetical. Hypothetical मतलब real condition में ऐसी कोई भी gas नहीं है. It is assumed that intermolecular forces are not present between the volumes of an ideal gas. Ideal gas के अपने ही कुछ parameters हैं कि अगर गैस आइडियल है मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट अगर जो अज्यूम करते हैं वो है कि वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एज कंपेयर टू स्पेस प्रेजेंट, दे ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स. ठीक है, आइडियल गैस की 2 कंडीशंस हैं. अगर कोई गैस आइडियल है मतलब कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं उनके बीच में प्रेशर नेग्लिजिबल. प्रेशर नेग्लिजिबल कैसे होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज गैस पार्टिकल्स विल बी नल, कुछ नहीं होंगे. ठीक है, मतलब कि बोला ऐसा अजम्पशन है स्टूडेंट्स कि आइडियल गैस क्या होती है? जिसके मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोला जाता है कि वॉल्यूम जो ये गैसेस ऑक्यूपाई करती हैं ये स्पेस के कंसिडरेशन में बहुत नेग्लिजिबल होती है. मतलब कि मान लो इतना बड़ा स्पेस है एंड इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है गैस का या एक एटम है गैस का. गेटिंग? ऐसा अज्यूम किया जाता है, ये अजम्पशंस होते हैं. ठीक है, चलो लेट अस. अब आप खुद समझो कि एटम्स तो कितने छोटे होते हैं यार. इतने से स्पेस में भी मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी गैस के लिए कि इतने सारे स्पेस में सिर्फ वो इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई करे? नॉट पॉसिबल, राइट? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल. तो ये आइडियल गैस के कंसिडरेशंस हैं. ओके, चलो लेट अस मूव ऑन. तो it is assumed that intermolecular forces are not present between the molecules of an ideal gas. Real gas follow these law only under certain specific conditions when forces of interactions are practically negligible.
अब रियल गैसेस कब फॉलो करेंगी ये सारे लॉज? स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती हैं ऑल्दो, बट कब करेंगी स्ट्रिक्टली? जबकि हम उसे आइडियल नेचर के करीब ले जाएं, रियल गैस को आइडियल नेचर के करीब ले जाएं। कैसे? उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिक्रीज कर दें, नेग्लिजिबल कर दें। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। ठीक है, okay students, so that's all for today's lecture. Now we'll continue with the same topic in our next class. Have a great day. Bye.